Good evening, everybody. Today, we are going to continue with the same topic, that is the Python, but the content will be different today. Today, we are going to discuss the very important part of the Python, that is called function. You know, function is the heart of any language, and without of the function, I just want to tell you, whatever you want to perform your task, that will be very hectic and very tough. Any language, whether we are going to use C or C++ or the Java, or still we are using the language Python, it also gives the opportunity to create the functions. So, as far as the definition of the function is concerned, you can say that a function is having the set of instructions that are responsible to execute a specific kind of task. And why function is called the heart of any programming language? Because you can reuse the same code. It provides the facilities of reusability. Like functions are having of two types, and you can also say that it is also called methods. So function or methods are of two types. One is called pure and another is called impure. So what about the pure? So pure function refers to the functions that are offered by system manufacturers and we are not allowed to make any changes. Still, we can use the function. Like example, print, max, sum, str, tuple, list. These all are the pure functions. These all are the pure functions, and later on we will categorize the functions also. But first of all, try to understand the function. What I have used here is the function that are offered by system manufacturer and we are not allowed to make any changes. We can use the function. For the example, your print, your max, your sum, your str, your tuple or your list. But before looking after the function, I just want to tell you that any function or any sentence ends with this particular parenthesis. अगर किसी भी नाम के साथ या किसी भी कंटेंट के साथ अगर आप ये पैरेंथेसिस देखते हो, दैट रेफर्स कि वो फंक्शन का पार्ट है, वो फंक्शन का पार्ट है। और फंक्शन क्यों बनाते हैं या फंक्शन क्यों यूज करते हैं? सपोज आप एक ही काम को बार बार करना चाहते हो, तो बेटर है कि आप उसका फंक्शन बना लो. दैट्स व्हाई यू विल सेव योर साइड टू राइट द कोड फॉर द सेम. तो मैंने कहा कि फंक्शन दो तरह का है, एक जिसको हम प्योर कहते हैं और दूसरा जिसको इम्प्योर कहते हैं. तो प्योर उस फंक्शन को कहते हैं जिसके स्ट्रक्चर में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते. वो जैसा दिया हुआ है, जिस तरह का दिया हुआ है, आप केवल उसी का इस्तेमाल करते हो. ऑल द फंक्शंस दैट आर ऑफर्ड बाय सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स, या सिस्टम की तरफ से जितने भी प्रेस्क्राइब फंक्शंस हैं, जितने भी ऑफर्ड फंक्शंस हैं, वो फंक्शन होता है, वो फंक्शन का पार्ट है. अब हम कहते हैं इम्प्योर फंक्शन. तो इम्प्योर फंक्शन क्या है?
कहते हैं द फंक्शन दैट कैन बी क्रिएटेड by the user itself that is called impure function. It is also called UDF, that refers to user defined function. That is called user defined function. User is also capable to create the function in Python. तो जितने भी functions होते हैं जिसको user खुद से create करेगा, that will be the part of your impure function. Impure function. Got it? Now, any function, whether that is the part of the pure function or whether that is the part of impure function, they are having the 4 types of structure or 4 types of prototype. अब देखिए, प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर हो सकता है ये टेक्निकल वर्ड हो, मैं इसको बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज कि आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन कराया, and at the time of opening your account, the type of signature that you have made over there, whenever you want to do the transaction, whenever you want to withdrawal of money, then you will have to do the same signature. उसी तरह का सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को जैसे जिस नाम से डिक्लेयर करते हैं उसी नाम से हम फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर वो फंक्शन चाहे प्योर फंक्शन हो या इम्प्योर फंक्शन हो, उस फंक्शन का 4 प्रोटोटाइप होता है, 4 स्ट्रक्चर होता है। उसको हम कह सकते हैं विथ आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न, दूसरा हो सकता है with argument, no return, तीसरा हो सकता है no arguments, no return, और फोर्थ हो सकता है no arguments with return। अब यहां पे आर्ग्यूमेंट और रिटर्न की हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ डाटा, दैट इज द टाइप ऑफ डाटा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको हटाएं, ओके। Now see, you can in short also आप लिख सकते हो, जैसे हमने कहा with argument with return। कोई भी फंक्शन, वो चाहे प्योर फंक्शन का पार्ट हो या इम्प्योर फंक्शन का पार्ट हो, ये किसी न किसी इसी 4 प्रोटोटाइप को वो मेंटेन करेगा। अब जरा आप ध्यान से देखो, आप लिखते हो, सपोज यू आर गोइंग टू राइट द फंक्शन, जैसे आप एक फंक्शन लिखते हो x is equals to int a, आप एक फंक्शन को यूज करते हो ना, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ डाटा। रिटर्न टाइप ऑफ डाटा, ये आपका क्या है? दिस इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। अभी आपको मैं बताऊंगा कि वी आर हैविंग द 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर और 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक को हम लोग कहते हैं एक्चुअल और दूसरे को कहते हैं फॉर्मल।
दूसरे को कहते हैं फॉर्मल। तो ये क्या है, ये प्योर फंक्शन है। आप कर क्या रहे हो कि वॉट एवर द टाइप ऑफ डाटा यू हैव पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हो, और x को जब आप प्रिंट करोगे तो अगर मान लो सपोज करो कि यहां पे a इज इक्वल टू 10.0 आपने लिखा है, then simply you want to convert this particular particular float towards an integer, और जब आप x को प्रिंट करेंगे तो this will produce the value as 10। चूंकि ये प्योर फंक्शन है, सिस्टम की तरफ से ऑफर्ड है, इसलिए आप बहुत आसानी के साथ इसका इस्तेमाल करते हो। पाइथन कहता है कि यू आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू क्रिएट द फंक्शंस फॉर योर ओन यूज। आप अपने नाम का भी फंक्शन बना सकते हो, अपने तरीके का भी फंक्शन बना सकते हो। तो ये तो मैंने फंक्शन का कॉलिंग पार्ट आपको दिखाया, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि फंक्शन आप प्योर फंक्शन यूज कैसे करते हो। अभी हम लोग अपने अपने द्वारा भी फंक्शंस बनाएंगे। तो अभी जैसे सपोज करो कि हमने लिखा कि देयर आर 4 सेगमेंट्स ऑफ द फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो देखो ये विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न का एक अच्छा एग्जांपल है। यहां पे आपका आर्ग्यूमेंट भी है और यहां पे ये रिटर्न भी कर रहा है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको बता दूं, एनी फंक्शन, और आप लिख सकते हो at the time of creating a function, following steps should be used। कौन कौन? तो पहला होगा डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। दूसरा होता है मैनिपुलेशन ऑफ द फंक्शन, और तीसरा होता है कॉल द फंक्शन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to decide the type of function that you want to declare। किस तरह का फंक्शन आप डिक्लेयर करना चाहते हो। दूसरा होता है मैनिपुलेशन, जैसा फंक्शन का नेचर है उसी के अकॉर्डिंगली आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे। और तीसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। थर्ड इज द कॉलिंग सेक्शन ऑफ द फंक्शन। नाउ यू कैन सी हियर, इसको हटाएं, इसको हटाएं। Now you can see here we are going to create a function in Python। क्वेश्चन आप लिख सकते हो, create a function in Python, create a function in Python to take 2 integers as an argument, create a function in Python that will take 2 integers as an argument and return the sum of it। This is the very easiest part of your function, and by this example you can make yourself very clear। आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो। take 2 numbers as an argument and return its sum। तो देखो क्वेश्चन ही क्लियर कर रहा है कि हमारा जो impure फंक्शन होगा that will be based upon with argument with return। फंक्शन बता रहा है कि you will have to take 2 integers as an argument and then after you will have to return the sum of this। तो मैं आपको बता दूं कि we will have to use the keyword def here। अगर आप पाइथन में कोई फंक्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए जिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं that is called def। उसको क्या कहते हैं? def, DEF, def। हम लोग सिंपल जाके बोलेंगे def sum।
फंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, डेफ सम। और चूंकि आप कह रहे हो कि दो नंबर यहां पे एज एन आर्गुमेंट आना चाहिए, तो हम लोग यहां पे बोल रहे हैं ए एंड बी। नाउ सी, it is a compound statement, that's why we will have to use here the block also. हमने लिख दिया def sum and we will have to pass here the two arguments, that is the a and that is the b, and simply you will have to write c is equals to a plus b। और आपको यहां प्रिंट नहीं करना है, it is just asking to return the result, तो that's why आप यहां पे लिखेंगे return c। कंप्लीटेड, फंक्शन बन गया आपका। देखिए, ये आपका डिक्लेरेशन है, ये आपका मैनिपुलेशन है, और ये आपका रिजल्ट आपने जिसको रिटर्न करना है। लेकिन अभी कॉलिंग सेक्शन पे आप नहीं गए। हम लोगों ने क्या लिखा कि पहले फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर उसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने का मतलब क्या है, उसके भी पहले मैंने क्या बताया कि बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो, एंड व्हेनेवर यू वांट द विड्रॉल ऑफ योर मनी, सो द सेम सिग्नेचर शुड बी मेड ओवर देयर। If you are going to make a simple mistake in the signature, the bank will deny to make the payment to you. Why? Because of mismatch of the signature. Similarly, the nature of the function that we have declared, at the time of calling the function, we will have to maintain the same. How? अब देखो, हम लोग इसको कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय ये देखो दो आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहा है। तो आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, नीचे में यहां से कॉल करिएगा, देन यू विल हैव टू टेक टू नंबर्स एज एन आर्ग्यूमेंट। तो क्या लिख दें यहां पे, x इज इक्वल्स टू int इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, एंड y इज इक्वल्स टू int इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। दैट्स इट। नाउ एक और भी वेरिएबल चाहिए, यहां पे लिखते हैं z इज इक्वल्स टू सम x कॉमा y। गॉट इट, x कॉमा y, और यहां से क्या हो जाएगा, प्रिंट z, प्रिंट z। ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आप जब इस सम फंक्शन को कॉल करोगे तो x का वैल्यू जो है दैट विल बी कॉपीड टू a, और y का जो वैल्यू है दैट विल बी कॉपीड टू b। नाउ a एंड b विल बी एडेड एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू c। नाउ व्हाइल द रिजल्ट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द c, दिस विल ट्रांसफर द c टू द z। अब देखो, ये विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न है, मतलब आपका ये दो आर्ग्यूमेंट यहां से a और b में गया, यहां से मैनिपुलेशन हुआ, एंड देन दिस इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू टू z, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रिजल्ट z। आप कहोगे सर इसका क्या फायदा, हम तो वैसे भी सम कर सकते थे। देखो इसका क्या फायदा हुआ, हम यहां लिखते हैं t इज इक्वल्स टू सम 11 प्लस 21, and while going to write the print here t, you will observe the sum of again two numbers. Now there is no need to maintain this particular c is equals to a plus b, क्योंकि a plus b आपको बहुत आसान लग रहा है, इसलिए आप कह रहे हो कि हम लोग तो बहुत आसानी से बना सकते थे। लेकिन आप ध्यान दो, हमने एक बार फंक्शन को क्रिएट करा, हमने फंक्शंस के बॉडी को एक बार क्रिएट करा, एंड वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन टू टाइम, फर्स्ट टाइम हियर एंड सेकेंड टाइम हियर। नाउ यू आर कैपेबल टू कॉल द फंक्शन टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। देयर इज नो नीड टू मेंटेन द declaration or the manipulation, only we will have to maintain the calling part. You got the point? This provides the facilities of the reusability, that is the scenario of the function. तो अभी जैसे मान लो कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, अभी हम आपको कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो एक नंबर को एक्सेप्ट करे और बताए कि वो प्राइम है कि नहीं है।
और नॉट ओनली दिस, देखिए फंक्शन बनाने का बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि हमने फंक्शंस को बना दिया, पाइथन आपको मॉड्यूल बनाने का भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल का मतलब, जैसे मान लो पाइथन के अंदर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक मैथ मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, सीस मॉड्यूल है। तो वो मॉड्यूल्स क्या है? दे आर हैविंग द कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस। तो आप अपने नाम का भी एक मॉड्यूल बना सकते हो और जितने तरह के भी ऑपरेशंस हैं उसको फंक्शंस बना के रख सकते हो। अब आपको जब बार बार उस वर्क को करना है तो टाइम टू टाइम देयर इज नो नीड टू राइट द कोड फॉर दैट। You simply you have to call the function and the work will go on. That is the speciality about the function. You got the point? So that is the way of creating the functions. Any problem, any doubt about that? You want to ask? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। देखो ये क्या हो गया? This is called name of the function. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और जब आप कॉल कर रहे हो ना तो इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। ये एक्चुअल पैरामीटर हुआ। तो जब फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते समय जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मल। पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर, तो द आंसर विल बी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन द वेरिएबल बी पास टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, बट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन द वेरिएबल और द वैल्यूज बी पास टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। तो देखो ये आपका डिक्लेरेशन था फंक्शन का, ये मैनिपुलेशन था आपका, and this is the calling of the function। अभी आप 100 टाइम भी सम फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो केवल इसको कॉल करोगे आपको फिर कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट द फंक्शंस। अब जितने भी वर्क आपके हैं आप फंक्शंस के थ्रू बनाते जाओ। तो